નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું દિવ્યા। આજે ઇસરો પોતાનું 2019માં અધૂરું રહી ગયેલું સપનું ફરી એક વખત સર કરવા જઈ રહ્યું છે। આજે ઇસરો લોન્ચ કરશે ચંદ્રયાન-3। શ્રી હરિકોટાથી બપોરે 2:35 કલાકે લોન્ચ કરવામાં આવશે। LVM-3 રોકેટથી અંતરિક્ષમાં ચંદ્રયાન-3ને છોડવામાં આવશે। 24 કે 25 ઓગસ્ટે ચંદ્ર પર તે લેન્ડિંગ થઈ શકે છે અને ઇસરો દ્વારા સોફ્ટ લેન્ડિંગ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવનાર છે। ચંદ્ર પર રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવનાર ચોથો દેશ બનશે ભારત અને ચંદ્રથી લેન્ડર અને રોવર તિરંગા સાથે સેલ્ફી પણ મોકલશે। ચંદ્રયાન-3ના પ્રક્ષેપણને લઈને દેશ ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે, જે ઉત્સાહ 2019માં પણ જોવા મળ્યો હતો। ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર લેન્ડિંગની તૈયારીઓ છે તે થઈ રહી છે। આ જે ચંદ્રયાન-3 છે એ દક્ષિણ ધ્રુવ પર લેન્ડ કરશે અને આવું કરનાર પણ ભારત પ્રથમ દેશ બની જશે। અને જ્યારે ચંદ્રયાન-3 મિશનની વાત કરતા હોય ત્યારે સાયન્ટિસ્ટ પાસેથી, ખગોળશાસ્ત્રી પાસેથી જ સમજવું વધારે સહેલું પડતું હોય છે, કારણ કે તેમની પાસે સૌથી વધારે માહિતી હોય છે। આપણી સાથે જયંતિભાઈ અને સર્વેશજી બંને જોડાયેલા છે, તેમની સાથે જ સીધો સંવાદ કરીશું। જયંતિભાઈ, ચંદ્રયાન-3ની નો એ જ ઉત્સાહ જે આપણે 2019માં પણ જોતા હતા, પરંતુ આ વખતે જે ચંદ્રયાન-2 જે થોડું ઘણું લોકો જાણે છે અને ચંદ્રયાન-3 કે જે લોકોને એવું જ છે કે આ ચંદ્રયાન-2માં થોડો ઘણો ફેરફાર, પરંતુ આ 4 વર્ષનો સમય એ ફેરફાર કરવા માટે કેટલો મહત્વપૂર્ણ રહ્યો અને આ ચંદ્રયાન-3ને કઈ રીતે અલગ ગણી શકાય ચંદ્રયાન-2થી? ચંદ્રયાન-2માં જે પ્રોબ્લેમ્સ થયા હતા જે સોફ્ટ લેન્ડિંગમાં, એ બધાને એનાલાઇઝ કરીને સોફ્ટવેર અને જે એના જે પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્વ કરવાનું 4 વર્ષનું જે ટાઈમ મળ્યું છે, એમાં ઘણી બધી ડેવલપમેન્ટ્સ થઈ છે, જે હમણાં આપણા સક્સેસ રેટને વધારે સારું કરવામાં હેલ્પફુલ થશે। પ્લસ આમાં પેલોડ્સ પણ વધારે છે, એટલે વધારે સારી રીતે ચંદ્ર ઉપર સ્ટડી થઈ શકશે। એ બધા એડવાન્ટેજીસ આ 4 વર્ષમાં થશે આપણને। ઓકે, સર્વેશજી, જે રીતે આપણે સતત ચંદ્રયાન-3ની વાત કરી રહ્યા છીએ, મિશનની પણ વાત કરી રહ્યા છીએ કે ચંદ્ર પર કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ હશે તે જાણવા માટે આ મિશન છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ ચંદ્રની આબોહવા એ પૃથ્વી કરતાં ઘણી બધી અલગ છે। ત્યાંનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એ પણ ઘણું બધું અલગ હોય છે। તો આ બધા જ સર્કમસ્ટાન્સીસને કઈ રીતે જોવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ જે કોઈ પણ મિશન હોય છે એને કમ્પ્લીટ કરવામાં આવતું હોય છે? આમાં જે રોવર છે એમાં જે પેલોડ્સ છે એ ત્યાંના મૂન ઉપરના સોઇલને, રોક્સના સેમ્પલ્સને એનાલાઇઝ કરવાના છે। પ્લસ એક સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી એક ટેકનિક છે જેનાથી જે ઓબ્જેક્ટ્સ હોય છે એમાં શું એલિમેન્ટ્સ છે એ સ્ટડી કરવામાં આવે છે। આ બધું સ્ટડી કરીને મૂન ઉપર એટમોસ્ફેરિક અને ત્યાંની લોકલ જે સોઇલ છે એ બધાની સ્ટડી કરવામાં આવશે। ओके, सर्वेश, आप શું કહેવા માંગશો? हाँ, देखिए इसमें क्या है बेसिकली कि जैसे जो ये हमारा चंद्रयान-3 मिशन है, वो उसका पूरा का पूरा जो फोकस है हमारे इसरो का, कि पहले तो हमें अपने लैंडर को लैंड कराना है और उसके बाद रोवर उसमें से निकल के रिसर्च स्टडीज करेगा। तो बेसिकली 4 पेलोड है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में 4 पेलोड है जो चंद्रयान-3 मिशन लेके जा रहा है। एक पेलोड का काम होगा उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज को समझना। जो सेकंड पेलोड होगा वो होगा लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, या तो अगर मैं उसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ वो क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ अर्थक्वेक्स आता है वहाँ पे मून क्वेक्स आता है, उसको स्टडी करेगा। देन एक पेलोड जो मुझे लगता है फोर्थ जो पेलोड है वो नासा की तरफ से दिया गया है, जो उनको आर्टेमिस मिशन में हेल्प करने वाला है, जो उनका फ्यूचर जनरेशन मिशन है। उन्होंने इसरो से हेल्प ली है, नासा ने अपना 4th पेलोड दिया है, जिसका काम रहेगा कि मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ और एक्यूरेट कैसे डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं थ्रू द लेजरिंग टेक्निक। ये सब जो रिसर्च है जो होने वाली चंद्रयान-3 मिशन। ओके, और सर्वेश जी, साथ में अगर हम रिस्क की भी बात करें, क्योंकि जैसे हमने चंद्रयान-2 में देखा था, हम सबको ऐसी आशा थी कि चंद्रयान-2 ही सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन वहां पे बहुत सारी गड़बड़े हो गई। मिशन ये जो चंद्रयान-3 है, हम ऐसी ही आशा रखते हैं कि ये भी सफल ही हो, लेकिन फिर भी रिस्क फैक्टर आ जाता है, तो उसमें क्या होता है? वो देखिए, इस बार जो इसरो ने, जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये सक्सेस बेस्ड डिजाइन मिशन नहीं है, ये फेलियर बेस्ड डिजाइन मिशन है। तो इस बार जैसे हमारी पिछली गलतियां हुई थी, पहले लास्ट अगर आप देखोगे तो सब ऑलमोस्ट 95% हमने अचीव कर लिया था। सिर्फ एक सॉफ्ट लैंडिंग थी जिसमें हम
कह सकते हो कि अनसक्सेसफुल रहे थे। तो उसको देखते हुए इसरो ने इस बार जो हमारे लैंडर के लेग्स है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया गया है। देन वेलोसिटी के नए नए सेंसर्स लगाए गए, क्योंकि लास्ट टाइम सब जानते हैं कि सिर्फ वेलोसिटी की वजह से हमारा लैंडर की वेलोसिटी हम कम नहीं कर पाए थे और वो क्रैश लैंड हो गया था मून सरफेस पे। उस पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। मेन यही दो चीज़ें, एक सेंसर जो लास्ट में सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से लैंड नहीं हो पाया प्रॉपरली, और लैंडर को काफ़ी लोग ने काफ़ी टेस्टिंग किया गया है। जहाँ तक मुझे पता है हेलीकॉप्टर से लेके एयरक्राफ्ट से लेकर उन्होंने गिरा गिरा के लैंडर को ट्राई किया है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो इस बार वी आर वेरी अश्योर कि इस बार होना ही होना है, हो जाएगा। જી और જયંતિભાઈ, જે રીતે આપણે વાત કરી કે મિશન સફળ થાય એવી તો આશા રાખીએ, પરંતુ રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે સાથે જ્યારે લેન્ડર લેન્ડ કરશે અને ત્યારબાદ રોવર પોતાનું કામ શરૂ કરશે, એ વચ્ચેની જે પરિસ્થિતિઓ હોય છે એ કેવી હોઈ શકે છે? કારણ કે આ પહેલા પણ લેન્ડર વખતે જ ઘણી બધી તકલીફો થઈ હતી. ઓર્બિટ જે છે તે અત્યારે ત્યાં પોતાનું કામ કરી રહ્યું છે, તો શું તે પણ જે પહેલા 2019માં મોકલવામાં આવ્યું હતું એ પણ આ વખતના મિશનને કામ માટે મદદરૂપ થશે? હા, એ બધા જે ચંદ્રયાન 2ના મિશનમાં જે ફેલિયર્સ થયા એ બધાને એનાલાઇઝ કરવામાં, ડીપલી એનાલાઇઝ કરીને કરવામાં આવ્યું છે, એ બધું હેલ્પફુલ થશે. પણ સ્પેસ મિશન્સ ઓલરેડી રિસ્કી જ હોય છે, કેમ કે એમાં ઘણું બધું ફર્સ્ટ ટાઈમ એક્સપેરિમેન્ટેશન હોય છે. એટલે સ્પેસ મિશનમાં રિસ્ક ફેક્ટર ને ફેલિયર્સના ચાન્સીસ તો ઓલવેઝ રહેવાના જ છે. ઓકે, સાથે જ જે રીતે આપણે અત્યારે ચંદ્રયાન 3ની વાત કરી રહ્યા છે, તો આપણી એક વાત હોય છે કે પૂરા દેશની નજર છે, પરંતુ જ્યોતિભાઈ ન માત્ર દેશ પરંતુ નાસા જેવી કંપનીઓ હોય કે પછી કોઈ બીજા કન્ટ્રીઝ છે એ પણ એટલા માટે નજર રાખી રહ્યા છે કારણ કે હવે કોઈ વ્યક્તિને ચંદ્ર પર મોકલવાના પ્રયાસો પણ થઈ રહ્યા છે. તો એ તમામ આગળના મિશન માટે ચંદ્રયાન 3 મિશન કઈ રીતે ઇમ્પોર્ટન્ટ ગણી શકાય? આપણે જો સોફ્ટ લેન્ડિંગ કરી શકીએ તો જ આપણે આપણા એસ્ટ્રોનોટ્સને ત્યાં ઉતારી શકીએ. એટલે એ રીતે આ મિશન બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને પ્લસ એક મૂન આગળ જઈને એક બેઝ બનશે આગળની એક્સપ્લોરેશન માટે. આગળ બીજા પ્લેનેટ્સનું એક્સપ્લોરેશન કરવું હોય કે કંઈ પણ આગળનું એક્સપ્લોરેશન થશે તો મૂન કેન બીકમ અ બેઝ ફોર ઇટ. તો એના લીધે આ મિશન બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. हाँ, सर्वेश, आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, इसमें कैसा है कि अगर हमने ये मिशन अचीव कर लिया तो सिर्फ खाली इंडिया के लिए ऐसा नहीं, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है कि बाई 2-3 ईयर में हमें गगनयान, हमें जो इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन मिशन होगा, ह्यूमन को जो लेके जाएगा, उसके लिए हमारा चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल होना बहुत ही ज़रूरी है. क्योंकि अगर वह हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया तो हमने वहाँ पे जो लूनर साउथ पोल है वहाँ पे हम रिसर्चेस कर सकते हैं, और हमारे जो फ्यूचर मिशंस होंगे जैसे दूसरी स्पेस एजेंसियां हैं वर्ल्ड की, उनकी सबसे ज़्यादा नज़र इस समय है कि चंद्रयान 3 का क्या होगा. क्योंकि उसके बाद ही उनके जो डीप स्पेस मिशन है या तो आर्टेमिस मिशन है, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि बेसिकली आपका मून क्या होगा, एक हॉल्टिंग पॉइंट हो जाएगा. वहाँ पे आप हॉल्ट, क्योंकि जो मेन रीज़न है वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिसर्च करने वाला है चंद्रयान 3, क्योंकि ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. किसी भी मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए यू नीड एन ऑक्सीजन, जो आपका ऑक्सीडाइजर का काम करता है, जो आपके फ्यूल को आपके स्पेस क्राफ्ट को दूर तक लेके जाता है, और हाइड्रोजन जो एक एनर्जी का सोर्स होता है. अगर ये हमने वहाँ पे जाके फाइंड आउट कर लिया, दिस विल बी कि एक अलग ही लेवल पे इसरो चला जाएगा, अगर हमारा इंडिया रहेगा ग्लोबली. जी, और सर्वेश, जैसे अभी आपने बोला कि हमारा इसरो अलग ही लेवल पे चला जाएगा. हाँ. हमारे देश में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो शायद ऐसा सपना देखते हैं कि उसको नासा में काम करना है. शायद ये भी चेंज होगा और शायद ऐसा होगा कि बाहर के लोग भी ऐसा बोलेंगे कि हमें इसरो में काम करना है. बिल्कुल, वो होना ही होना है. सिर्फ जहाँ तक मुझे आता है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, हम एक साइंस इंस्टीट्यूट रन करते हैं. तो जब चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग था, मैंने सच में मेरी लाइफ में ये बज़ नहीं देखा था. जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो एक आम आदमी है, सबको पता है चंद्रयान 2, तो ये क्रेज़ डेवलप हो रहा है. आप खाली इमेजिन करिए, चंद्रयान 2 वॉज 95% सिर्फ सक्सेसफुल हुआ था. अगर चंद्रयान 3, विच आई होप सो कि होना ही होना है, अगर लॉन्च हो जाता, आप इमेजिन करिए जो हमारे यंग माइंड्स है, जो आज के हमारे छोटे बच्चे, क्या इम्पैक्ट जाने वाले. ये सेम वही इम्पैक्ट करेगा जैसे नासा का हुआ था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन ने लैंड किया था. ये हमारे लिए सेम वही पॉइंट है. ओके, इट विल चेंज द स्पेस एक्सप्लोरेशन फॉर इंडिया. हाँ,
જયદીપભાઈ, જે રીતે નાસાએ પહેલી વખત કોઈ વ્યક્તિને ત્યાં મોકલ્યા અને એ બાદ અમેરિકા પોતાના વ્યક્તિને ત્યાં મોકલનાર પહેલો દેશ બની ગયો હતો, પરંતુ ત્યારે કયા પ્રકારનું લેન્ડિંગ થયું હશે અને શું સ્વાભાવિક છે દક્ષિણ ધ્રુવ વિસ્તારમાં જ્યારે ભારત પહેલું એવો દેશ બનશે કે જે લેન્ડ કરવાનું છે, પરંતુ જો નાસાએ આ પ્રકારે લેન્ડ કર્યું હતું તો એ કયા વિસ્તારમાં હતું અને કઈ રીતે એને સક્સેસફુલ બનાવ્યું હતું, જેના આધાર પર આપણે કોઈ અલગ મિશન વિશે વિચારી શકીએ? આપણે છે ને જે લેન્ડિંગ કરવાનું છે એ સાઉથ પોલમાં એટકિન બેઝ છે, ત્યાં આપણે લેન્ડિંગ કરવાના છીએ. અને આઈ એમ નોટ અવેર નાસાનું ક્યાં લેન્ડિંગ થયું હતું, પણ ત્યાં ઘણા બધા ક્રેટર્સ હોય છે અને એ ક્રેટર્સમાં બેઝ બનાવીને ત્યાં લેન્ડિંગ કરવામાં આવે છે. તો આપણું જે છે એ એટકિન બેઝ છે, ત્યાં લેન્ડિંગ થવાનું છે આપણું. ઓકે, આપણી સાથે અન્ય ગેસ્ટ પણ જોડાઈ ગયા છે. આપણી સાથે રીતેશ શર્માજી જોડાઈ ગયા છે, તેઓ ડેપ્યુટી પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર છે ચંદ્રયાન 3ના ઇસરોથી. સાથે જ દિવ્યદર્શન પુરોહિતજી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, તેઓ ખગોળશાસ્ત્રી છે. અને રીતેશજી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. રીતેશજી, જે રીતે સતત ઇસરો પોતાની કામગીરી કરી રહ્યું છે અને કામગીરીમાં 110% તે સફળ થશે એવી જ આશા તમામ દેશવાસીઓને છે. આ મિશનને લઈને અત્યારે આપનું શું કહેવું છે? हेलो, यस रितेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो मैडम, एम आई ऑडिबल? या यस सर. हाँ हाँ, बताइए मैडम, हिंदी में आप पूछ हाँ हाँ, ठीक है सर. सर, जैसे अभी ये चंद्रयान 3 मिशन हम लॉन्च करने वाले, बस अभी बहुत कम ही मिनटें बची है. इसरो इस पूरे मिशन को हैंडल कर रहा है. सबसे पहले इस मिशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? या मैडम, जैसे कि आपको पता है ये जो इसरो का तीसरा मिशन है चंद्रयान, तो पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन किए गए हैं और दोनों ही सफल रहे हैं. अगर देखिए, चंद्रयान 1 में ऑर्बिटर गया था और उसके साथ एक हार्ड लैंडिंग हमने किया था मूव इम्पैक्ट प्रोब करके, जो कि वहाँ पे जाकर के चंद्रमा की सतह पे पहली बार हमने तिरंगा वहाँ पे स्थापित कर दिया था. फिर उससे जो भी हमने साइंटिफिक जो भी ऑब्जर्वेशन आए और उससे हमको पता चला कि पानी वहाँ पे है. चंद्रयान 1 पे से हमको पता चला साउथ पोल पे है. तो हमने फिर आगे चंद्रयान 2 का प्रारूप किया और ये हमने डिफाइन किया कि चंद्रयान 2 में हम ऑर्बिटर और उसके साथ एक लैंडर को भेजेंगे और वो भी वही दक्षिणी ध्रुव पे भेजेंगे. और उसके लिए हमने ऑर्बिटर को भेजा. ऑर्बिटर पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, लेकिन लैंडर में क्या हुआ कि 2.1 किलोमीटर पे जाके हमारा उससे संपर्क टूट गया और लैंडर वाला पार्ट पूरा नहीं हो पाया था. तो उसके बाद हमने 2019 6 सितंबर के बाद इसका प्रारूप की स्थापना की कि जो भी हमको इनके जो भी सेटबैक हुए, फेलियर हुआ, उससे हमको नए अनुभव प्राप्त हुए और इन अनुभवों के आधार पे हमने खूब सारे परीक्षण किए और चंद्रयान 3 की अभिकल्पना की कि वो आगे हम लैंडर और रोवर को भेजें. और उसी का जो दिन आ गया है, आज वो लॉन्च होने वाला है 2:35 पे. तो ये कार्य 2019 के बाद से स्टार्ट हुआ और 2023 को अपने मुकाम पे पहुंच गया है. जी, और सर, जैसे अहमदाबाद की इसरो की भी बात करें तो उसकी भी बहुत सारी भूमिकाएं हैं इस चंद्रयान 3 मिशन में, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी मैडम, जैसे आपने बोला तो चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों में सैक जो है, जिसका नाम है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर या अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, इसकी एक बहुत ही अहम भूमिका है. यहाँ पे सभी पेलोड यानी नीत भारों का निर्माण किया जाता है और लैंडर क्राफ्ट को उतारने के लिए जो भी वहाँ पे संवेदक चाहिए यानी सेंसर्स चाहिए, उनका भी निर्माण होता है. तो इस बार जो मुख्य जो सेंसर जा रहे हैं उसमें कार्बन रडार अल्टीमीटर है जो ऊंचाई नापेगा और उसके बाद एक LPDC है, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा सिस्टम, जिसमें वो इमेज लेगा और बताएगा कि लैंडर क्राफ्ट किस लोकेशन पे है, यानी अपने पथ पे है कि नहीं, उससे उसका ज्ञात होगा. और तीसरा है लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा, उसके इमेज को लेके पूरा सिस्टम बताएगा कि आपको कहाँ पे सेफली लैंड करना है. तो ये सब चीज़ें ऑन बोर्ड एक सिस्टम है जिसको डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, DPU, उसमें उसका प्रोसेसिंग करते हैं और उसमें पूरा रेफरेंस मैप उसका रखा जाता है. तो इनके माध्यम से बताया जाता है कि हम सही पथ पे हैं और हम वहाँ पे सुरक्षित कहाँ पे लैंड कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम नेविगेशन गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम को देते हैं और वो उस पूरा लैंडर और रोवर क्राफ्ट को ला के वहाँ पर उतारेगा.
और उसके बाद एक बार उतर जाता है तो लैंडर पे चारों कोने पे 4 कैमरे लगे हैं जिसको लैंडर इमेजर बोलते हैं। तो उससे हमको जब रोवर बाहर निकलेगा तो उसकी तस्वीर खींचेगा, और रोवर पे भी एक कैमरा हमने दिया है जिसको रोवर इमेजर बोलते हैं। वो जब वो आगे बढ़ेगा तो हमें रोवर का भी पता चलेगा कि वो लैंडर से कितना दूर जा रहा है। और आपने देखा होगा कि रोवर क्राफ्ट में हमने इसरो का और अपना एम्ब्लेम लगा के रखा है, वो भी चंद्र की सतह पे कैसा है वो भी हमको उस रोवर इमेजर से दिखेगा। तो ये सब जितने भी सेंसर और सेंसर का निर्माण किया गया है, ये सब अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक के माध्यम से किया गया है। मैडम જી સર, આપણી સાથે દિવ્યદર્શન પુરોહિતજી પણ જોડાયેલા છે, અને પુરોહિતજી, જે રીતે અત્યારે સતત દેશભરના લોકોની નજર આ ચંદ્રયાન-3 મિશન પર છે, હવે થોડી મિનિટો બાકી રહી ગઈ છે, જે રીતે સતત લોકોમાં અને ખાસ કરીને બાળકોમાં ચંદ્રયાન-3 અથવા તો 2 ને લઈને પણ ઘણો બધો ઉત્સાહ હતો, તેને કઈ રીતે જોઈ શકાય? આ વધુ ઉત્સાહ છે ચંદ્રયાન 3માં, કેમ કે હવે એ 100% લાગી રહ્યું છે, 110% લાગી રહ્યું છે કે આપણે લેન્ડ થઈશું। અને ઇસરોના વૈજ્ઞાનિકોએ, એન્જિનિયર્સ, ટેકનિકલ ટીમે જેટલી મહેનત કરી છે 4 વર્ષમાં અગાધ પ્રયત્નો, અને ચંદ્રયાન 1 અને 2 પછી જે આપણે આગળ શીખ્યા છે એ આપણો કૂદકો છે। જેમ પહેલું પગથિયું ચડે એ ચંદ્રયાન 1, બીજું પગથિયું ચડે એ 2 હતું, અને હવે ત્રીજું પગથિયું ચડે છે। એટલે ચંદ્રયાન 3 માટે બહુ જ ઉત્સાહ છે, કેમ કે એના જે 7 પેલોડ એની જોડે લઈ ગઈ રહ્યું છે, એનાથી 7 પ્રકારના બહુ જ મોટા એચિવમેન્ટ, અને સૌથી મોટું એચિવમેન્ટ એક મને લાગી રહ્યું છે કે 100 પ્લેનેટ્સને શોધવાનું એચિવમેન્ટ જે કોઈ પણ દેશ અત્યાર સુધી કર્યું નથી, એવું આપણે એની પર મૂકેલું છે પેલોડ તરીકે, આપણે પ્રપલ્ઝન મોડ્યુલની અંદર પેલોડ મૂકેલો છે। એટલે આપણને 100 પ્લેનેટ્સની પણ જાણકારી મળી શકશે ભવિષ્યમાં આના ડેટાના આધારે। અને ચંદ્રની એક્ઝેક્ટ ડિસ્ટન્સ શોધવા માટેનું રેટ્રો રિફ્લેક્ટર નાસાનું મૂકેલું છે, એ પણ ઘણું ફાયદામંદ રહેશે। પછી ભૂકંપનીયતા છે, ચંદ્રની ઉપર આવેલા ભૂકંપો છે, એટલે ચંદ્રના કંપ કહી શકાય ને, કેમિકલ કમ્પોઝિશન છે, થર્મલ ઇફેક્ટ છે, પ્લાઝમા છે, આ બધું પણ જાણકારી મળી શકશે। એટલે ભવિષ્ય આપણા માટે બહુ સુંદર સપના લઈને સંજોવીને ચંદ્રયાનથી લઈને આવી રહ્યું છે। દિવ્યાજી જી, અને સાથે જ જયંતિભાઈ, જે રીતે અત્યાર સુધી આપણે કદાચ નજર કરીએ તો ઘણા બધા મિશન ચંદ્ર પર ગયા છે, અને ખાસ કરીને તેમાં હ્યુમન પણ ગયેલા છે, પરંતુ જેમ આપણે ચીનની વાત કરીએ કે પછી રશિયાની અથવા અમેરિકાની વાત કરીએ, તો આ બધા જ લોકોએ ઘણા બધા મિશન કર્યા, અને ત્યારબાદ 10થી પણ વધારે, 15થી પણ વધારે મિશન કર્યા, અને ત્યારબાદ તેમાંથી ગણ્યા ગાંઠ્યા સક્સેસફુલ ગયા છે। પરંતુ જો આ મિશન આપણું સક્સેસફુલ જાય છે ચંદ્રયાન-3નું, તો માત્ર 3 એવા મિશન હશે, અને એમાંથી સૌથી વધારે એટલે કે 2 એવા મિશન કે જે સક્સેસફુલ ગયા હશે એવું કહી શકાશે। આપણું જે સક્સેસ રેટ છે એ આખા વિશ્વમાં સૌથી સારું છે, અને આમ જોવા જાવ તો જે ચંદ્રયાન 2 પણ છે એ સોફ્ટ લેન્ડિંગના સિવાય બધું જ એમાં સક્સેસ ગયેલું છે। તો આપણે જે સક્સેસ રેટ છે એ બેસ્ટ છે આપણો આખા વર્લ્ડમાં। जी हाँ, અને सर्वेश जी, यही सक्सेस रेट इसरो की जो अहमियत है वो पूरे विश्व में बढ़ाएगा। जैसे अभी नासा भी कह रहा है कि हमारी पूरे मिशन पे इसलिए नजर है क्योंकि वो फिर से एक ह्यूमन को भेजना चाहता है, और वही दक्षिण ध्रुव में, और अगर वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग हो सकता है तो उसके लिए भी ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक नासा का आर्टेमिस मिशन है, पता है वो ह्यूमन को भेजने का ही उनकी प्लानिंग है। अब मेन उनको जब सिर्फ इस चीज़ का है कि अगर हमारा जो चंद्रयान 3 है, अगर वो लूनर साउथ पोल पे लैंड करता है, तो जहाँ जैसे कहा जाता है कि वहाँ पे सबसे बड़ा वाटर और आइस का डिपॉजिट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डिपॉजिट मिल सकता है, तो वो उनके लिए फ्यूचर मिशन और फ्यूचर डीप स्पेस मिशन के लिए हमेशा ही हेल्पफुल रहने वाला है। और जैसे आपने पहले पूछा कि जैसे ये हमारा जो भारत का है, हम पहला कंट्री दुनिया में है जो वी आर ट्राइंग टू लूनर साउथ पोल पे लैंड करने का हम ट्राई कर रहे हैं। नासा हुआ, आपकी दूसरी जो पुरानी स्पेस एजेंसियां हैं, उन्होंने कभी भी यहाँ पे ट्राई नहीं किया। दे हैव ऑलवेज ट्राइड इन द इक्वेटोरियल रीजन, जहाँ पे सनशाइन हमेशा रहता है, काफ़ी हद तक उन्हें सनशाइन मिलता है। हम जहाँ पे लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कितने सालों से वहाँ पे सनशाइन भी नहीं किया है। तो वहाँ पे ह्यूज डिपॉजिट है आइस का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। वी विल बी द फर्स्ट कंट्री, हम पहले देश होंगे जो हम लूनर के साउथ पोल पे लैंड करने का ट्राई कर रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया की नज़रें इस समय चंद्रयान 3 पे है। सिर्फ नासा ही नहीं, आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी होगा, कॉस्मोस होगा, सबकी नज़र इस समय चंद्रयान 3 पे, क्योंकि उनके आगे के सारे मिशन इस पे ही आधारित होने वाले हैं, हमारे चंद्रयान 3 के मिशन पे।
હા અને ચંદ્રયાન-3 મિશન એ ભારતના પણ આગળના ઘણા બધા મિશન માટે આધારરૂપ બની રહેશે. અન્ય જેટલા પણ દેશ પોતાના મિશનને મોકલવા માંગે છે એમના માટે પણ એક આધારરૂપ બની રહેશે. અને હવે જે ચંદ્રયાન-3 મિશન છે તેને લઈને વધુ અપડેટ પણ મેળવીશું ગ્રાફિકના માધ્યમથી, જેનાથી સમજવું સહેલું બની જાય કે કઈ રીતે આ મિશન પાર પાડવામાં આવશે. મારા સહયોગી રાધા અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. રાધા, ઓવર ટુ યુ. જે બિલકુલ દિવ્યા, જે પ્રકારે ચંદ્રયાન-3 હવે ગણતરીના સમયમાં જ્યારે લોન્ચ થવા જઈ રહ્યું છે, સમગ્ર દેશની મીટ ત્યાં મંડાયેલી છે અને નવા સોપાન પાર કરવા માટે ચંદ્રયાન-3 જઈ રહ્યું છે. ગ્રાફિક્સના માધ્યમથી સમજશું ચંદ્રયાન-1, 2 અને 3 અલગ અલગ પ્રકારે કયા પ્રકારનો પડકારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, શું છે શું નહીં. મિશન ચંદ્રયાન-3 એ ઇસરોનો ઇન્ડિયન લ્યુનર એક્સપ્લોરેશન પ્રોગ્રામ છે. હવે સાદી ભાષામાં જો આ વસ્તુને સમજાવવા જઈએ ને તો ઇન્ડિયન લ્યુનર એક્સપ્લોરેશન એટલે શું કે ત્યાં ચંદ્ર પર જઈ અને ત્યાંની જે ખગોળીય માહિતી છે એ આપણા સુધી પહોંચાડવી. હવે ચંદ્રયાન-3 ના ચંદ્ર સંશોધન કાર્યક્રમનું આ એક ત્રીજું મિશન છે. પહેલા મિશનમાં પાણીના અણુઓ વિશે તેમણે જણાવ્યું હતું, બીજા મિશનમાં આસપાસનું વાતાવરણ કેવું છે તે જણાવ્યું અને ત્રીજા મિશનમાં હજુ પણ ઉપયોગી માહિતી આપશે. ભારતે 2008માં ચંદ્રયાન-1 ને મોકલ્યું હતું. ચંદ્રયાન-1 2008માં મોકલવામાં આવ્યું. 2009 આસપાસ તેનો સંપર્ક તૂટ્યો હતો, પરંતુ ત્યાં સુધી 95% જેટલી માહિતી આપણને મળી ગઈ હતી. ચંદ્રયાન-1 મિશનમાં એક ઓર્બિટર અને ઇમ્પેક્ટરનો સમાવેશ થાય છે. 9 આસપાસ આ સંપર્ક તો તૂટ્યો, પરંતુ 95% ત્યાં HO2 જે પાણીની માહિતી તેમના દ્વારા પહોંચાડવામાં આવી હતી. ઇમ્પેક્ટર ચંદ્ર પરના શેક્ટલન ક્રેટર સાથે અથડાયું હતું કે જેને કારણે 2009ની આસપાસ સંપર્ક તૂટ્યો હતો, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં આપણે આપણી સિદ્ધિ હાંસલ કરી લીધી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ બીજો એક સ્ટેપ આપણે આગળ વધ્યા હતા, એટલે કે ચંદ્રયાન-2 પર ગયા. ભારતે ચંદ્ર પર ઝંડો ફરકાવનારો ચોથો દેશ બન્યો. અમેરિકા, રશિયા, ચાઇના પછી ભારત ચોથો દેશ બન્યો છે જેણે ચંદ્ર પર પોતાનો ઝંડો ફરકાવ્યો છે, એટલે કે ત્યાં પોતાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. ઓગસ્ટ 2009માં 2008માં ચંદ્રયાન-1 ગયું હતું, તો ઓગસ્ટ 2009માં ચંદ્રયાન-1 સાથેનો આપણો સંપર્ક તૂટી ગયો હતો. એટલે કે એક વર્ષ આસપાસ કહી શકાય કે આટલા સમયગાળામાં આપણે આપણી ઘણી બધી માહિતીઓ આપણે એકત્રિત કરી લીધી હતી અને ચંદ્રયાનનો 95% જેટલો ઉદ્દેશ્ય આપણે પ્રાપ્ત કરી લીધો હતો. મિશન ચંદ્રયાન-1 કે જેમાં આપણે પાણીના અણુઓ ચંદ્ર પર છે એ માહિતી આપણે મેળવી હતી. ચંદ્રયાન-1 મિશને ચંદ્રની સપાટી પર પાણીના અણુઓ શોધવાની મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. એટલે કે ભારત ચોથો દેશ હતો. અમેરિકા, રશિયા અને ચીન પછીનો ભારત દેશ કે જેણે પાણીના અણુઓ શોધી કાઢ્યા હતા. હવે ચંદ્રયાન-2ની વાત કરીએ. પહેલો સ્ટેજ આપણે પાર કરી લીધો, બીજું પગથિયું ચડ્યા. 2019ની 22 જુલાઈએ આપણે બીજું પગથિયું ચડ્યા હતા. ચંદ્રયાન-2 ને અવકાશમાં આપણે રવાના કર્યું હતું. હવે બીજા પગથિયામાં પણ એ જ મહત્વની ભૂમિકા ભારતે ભજવી હતી, પરંતુ ત્યાં પણ વિક્રમ સાથેનો સંપર્ક તૂટ્યો હતો. ચંદ્રયાન-2માં વિક્રમ નામનું લેન્ડર ચંદ્ર પર ઉતરવાનું હતું કે ત્યાં જ ક્રેશ થઈ ગયું હતું, પરંતુ લેન્ડર ઉતર્યા પહેલા જ તેના દ્વારા માહિતી, જે રોવર હતું તેના દ્વારા માહિતી સતત આપવામાં આવતી હતી. પ્રજ્ઞાન રોવર દ્વારા ચંદ્રની સપાટીના અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ તમામ વસ્તુ વિક્રમ અને રોવર, જે પ્રજ્ઞાન રોવર છે તે ચંદ્રયાન-2 એટલે કે એક સ્ટેપ આપણે થોડા આગળ વધ્યા. પહેલા સ્ટેપમાં જે પ્રકારની માહિતી પ્રાપ્ત કરી, એટલે કે 2019ની 6 સપ્ટેમ્બરે ચંદ્ર પર ઉતરાણ કરતી વખતે વિક્રમ લેન્ડર સાથેનો આપણો સંપર્ક તૂટ્યો હતો. 2009ની 6 સપ્ટેમ્બરે આપણો સંપર્ક તૂટી ગયો હતો. વિક્રમ લેન્ડરના અવશેષ 3 મહિના પછી મળ્યાની નાસાએ જાહેરાત કરી હતી. એટલે કે આપણો સંપર્ક તૂટ્યો, પરંતુ એણે પોતાની માહિતી આપવાનું બંધ નથી કર્યું. નાસાએ જણાવ્યું હતું કે હજુ માહિતી આપે છે. વિક્રમ લેન્ડર નિષ્ફળ રહ્યું, પરંતુ ઓર્બિટરે તેનું કામ સારી રીતે કર્યું હતું કે ઓર્બિટરે પોતાની માહિતી આપી. ઓર્બિટર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું ચંદ્રની સપાટી અને તેના આસપાસના વાતાવરણ વિશે. ઓર્બિટરે નવી વૈજ્ઞાનિક માહિતી આપી હતી, જે આપણે ચંદ્રયાન-1 મિશનમાં અને ત્યારબાદ ચંદ્રયાન-2માં આ વાતાવરણની નવી માહિતી આપણને મળી છે. તો જે પ્રથમ પગથિયામાં ન કરી શક્યા એ બીજા પગથિયામાં એનાથી પણ વધારે સિદ્ધિ ભારતે હાંસલ કરી છે. એનાથી ચંદ્ર અને તેના વાતાવરણ, આસપાસનું વાતાવરણ કેવું છે તેના વિશે તેમના દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી હતી. તો અલગ અલગ માહિતી ચંદ્રયાન-1 અને 2 દ્વારા આપવામાં આવી. એટલે કે ચંદ્રયાન-3 હજુ પણ એક ડગલું આપણે આગળ વધી રહ્યા છે, હજુ નવી સિદ્ધિ હાંસલ કરવા જઈ રહ્યા છે. જે દિવ્યા. જી રાધા, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અને આ સિદ્ધિ આ વખતે આપણે હાંસલ કરીને જ જંપીશું, એક આશા અને વિશ્વાસ પણ છે. रितेश जी अपनी साथ जुड़ाएला है। रितेश जी, जिस तरीके से ये चंद्रयान मिशन की बात की जा रही है,
जुलाई के पहले मतलब जब इसकी चर्चाएं हो रही थी तो कुछ फिक्स नहीं था कि कब होगा, तो क्या इसमें जो मंथ का सिलेक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है? क्यों जुलाई ही क्यों पसंद किया गया? जैसा कि आपको पता है कि जब भी हमको इसको लॉन्च करना होता है तो बहुत सारे पैरामीटर है जिनको हमको ध्यान में रखना होता है। एक है कि जब हम चांद की ऑर्बिट में जाएंगे तो हम कब पहुंच रहे हैं, चांद हमसे कितना पास है, कितना दूर है, और हमारे सोलर पैनल को सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी कि नहीं। अगर हमको वो पता करना है तो इन सब का आंकड़े हमको इकट्ठा करना पड़ता है और उसका हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो हमने हर महीने में इसके लॉन्च विंडो हमने डिफाइन किए। तो जनवरी से लेकर जुलाई तक जो भी प्रोबेबल लॉन्च विंडो थे उनका कैलकुलेशन किया गया, और जब लैंडर क्राफ्ट वहाँ तक पहुँचेगा तो उसमें कितना फ्यूल मार्जिन रहेगा, क्योंकि फ्यूल एक बहुत बड़ी ये हर किलोग्राम का लॉन्च से बहुत सीधा कॉस्टली अफेयर होता है। तो उसके बेसिस पे हमने कंप्यूट किया कौन सा सबसे इफिशिएंट ड्यूरेशन होगा जिसमें हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके लिए जुलाई में हमको लॉन्च विंडो मिला, और उस लॉन्च विंडो में हमारे पास कितना अंत में फ्यूल मार्जिन रहेगा करने के बाद भी अगर हमारे पास ये सब रहता है तो वो हमारे मिशन को और आगे बढ़ा सकता है। तो इसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है और एक लैंडर मॉड्यूल है। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल उसको ऑर्बिट में लेके जाएगा, और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल का जो भी फ्यूल और प्रोपल्शन है वो उसको ला करके वहाँ पे लैंडिंग के काम आएगा। तो ये सब पैरामीटर को ध्यान कर रख के कब उसमें इक्लिप्स होगा, हमारे बैटरी चार्ज होंगे कि नहीं होंगे, और उसमें फ्यूल मार्जिन कितना, इनके बेसिस पर निर्धारित करते हैं कि हमको कब जाना सर्वोपयुक्त है। तो ये 12 से जो 19 जुलाई का समय आया ये हमारे लिए सबसे अच्छा नंबर आया, और इसी के बीच हमने इसको प्लान किया। જી રીતેશજી, અને ચંદ્રયાન 3 ને લોન્ચ કરવામાં બસ હવે ગણતરીની મિનિટો જ બાકી રહી ગઈ છે। પડે પડની અપડેટ પણ અમે આપના સુધી પહોંચાડતા રહીશું। તમામ જે સાયન્ટિસ્ટ છે, ખગોળશાસ્ત્રી છે, તેમની પાસેથી પણ જાણીશું આ મિશનને લઈને। પરંતુ હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે। जैसे सभी को पता है कि जो हमारा मंगलयान था, जो मिशन मंगल था, बेसिकली वो हमारा जो हॉलीवुड की ग्रेविटी मूवी है उससे भी कम बजट में हमने अपने ऑर्बिटर को मार्स के ऑर्बिट में पुट कर दिया था, रख दिया था। तो सबसे मेन रीजन ये है कि एक तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्टों का एफर्ट, जो वो एफर्ट लगाते हैं, जो रिसर्च करते हैं उस चीजों के लिए। शायद जहां तक है कि आप डायरेक्टली भी मून पे उसे भेज सकते हैं, हमारे स्पेसक्राफ्ट या तो लैंडर रोवर को, बट क्या होता है उसमें आपका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, आपका फ्यूल लोड, पे लोड इतना इंक्रीज हो जाता है। बट वही चीज बजट में करने के लिए जैसे आपको स्लिंग शॉट एक टेक्निक है, हम ग्रेविटी का यूज करते हैं। हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है वो जहां तक 179 किलोमीटर पे जाके आपके रॉकेट का हो जाएगा, वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। फिर प्रोपल्शन जो मॉड्यूल रहेगा वो कंटिन्यूस मैन्यूवर के थ्रू ऑर्बिट के धीरे धीरे अर्थ से दूर होता जाएगा। फिर एक टाइम पे वो मैन्यूवर वो होने से वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ेगा और फिर वो मून की ग्रेविटी के अंदर प्लेस किया जाएगा। सेम वहां पे भी होगा, कंटिन्यूस वो मून के ऑर्बिट में कंटिन्यूस मूव होता जाएगा, स्लोली स्लोली क्लोजली, एंड देन आवर साइंटिस्ट आर गोइंग टू लैंड द रोवर ऑन द लैंडर ऑन द मून सरफेस। ઓકે, પુરોહિતજી આપણી સાથે ફરી જોડાઈ ગયા છે। અને પુરોહિતજી, આ મિશનની ચર્ચા તો આપણે ખૂબ કરી, પરંતુ આ મિશનને પાર પાડનાર એ જે ખરેખર હીરોઝ છે, આપણા દેશના હીરોઝ, એ તમામ સાયન્ટિસ્ટ કે જેમાં આમાં એક અણીભર પણ જેનો ભાગ છે અને જેણે ભાગ લીધો છે, એ તમામ સાયન્ટિસ્ટ માટે આપ શું કહેશો? એને સેલ્યુટ જ કરવી પડે, કેમ કે જે તે સૈનિકો સરહદ પર લડી અને ભારત દેશને બચાવે છે, ભારત દેશનું નામ આગળ વધારે છે। કૃષિકારો, ખેડૂતો અન્ન પકવીને ભારત દેશની જનતાનું પેટ ભરે છે। એ રીતે વિજ્ઞાનની ભૂખ મટાડનાર, વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં આગળ વધનાર જે વૈજ્ઞાનિકો છે, જે ટેકનિશિયન છે, જે એન્જિનિયર્સ છે, એમની મહેનતને કારણે જ આજે વિશ્વની અંદર ભારતનું નામ રોશન બન્યું છે, અને આ બધાની સંયુક્ત મહેનતનું પરિણામ છે। એટલે હું એવું કહીશ કે એ સલામને યોગ્ય છે, પ્રણામને યોગ્ય છે, અને એ પૂજવાને યોગ્ય છે, કેમ કે એની સફળતાનું મહેનતનું જ પરિણામ છે કે આપણે સફળ એક પછી એક પગલાં સફળ થઈ રહ્યા છે। 147 ઉપગ્રહ છોડનારો આપણો દેશ પ્રથમ બન્યો, ચંદ્ર પર ઇમ્પેક્ટર પ્રોબ છોડનારો દેશ પ્રથમ બન્યો, મંગળ પર યાન મોકલનારો દેશ પ્રથમ બની ગયો। હવે આપણે સાઉથ ઇક્વેટર પર, ઇક્વેટરની સાઉથમાં 70 ડિગ્રી લેટિટ્યુડ પર લોન્ચ થઈશું, એટલે આપણે પ્રથમ દેશ બની જઈશું। એ બધાની મહેનતનું મૂળ પરિણામ આ વૈજ્ઞાનિકો, ટેકનિશિયન, એન્જિનિયર્સની ટીમ છે। એટલે આપણા બધા માટે એ બહુ ગર્વની વાત છે। એ લોકોને સલામ છે, એ લોકોને પ્રણામ છે। દિવ્યાજી।
જી સર, આપ અમારી સાથે જોડાયા એ બદલ આપનો આભાર. અને જયંતિભાઈ, જે રીતે ગ્રેવિટીની આપણે બ્રેકમાં પણ વાત કરી, તો માફ કરશો, પૃથ્વીની ગ્રેવિટી અને ખાસ કરીને બીજા કોઈ ઉપગ્રહ કે ગ્રહની ગ્રેવિટીમાં ઘણો બધો અંતર હોય છે. તો આ મિશનને ગ્રેવિટીને આધાર પર રાખીને કઈ રીતે પાર કરવામાં આવતું હોય છે? આ જે લોન્ચિંગ વિન્ડોની વાત થઈ હતી, તો આમાં આ બધી કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવામાં આવે છે. તો આમાં અર્થ અને મૂન બંનેની ગ્રેવિટેશનલ પુલનું એડવાન્ટેજ લઈને એ 179 કિલોમીટર્સ પછી એ જે બંને ગ્રેવિટીના પુલથી એ સ્લિંગશોટ કરીને એને મોડ્યુલને મૂનની તરફ મોકલવામાં આવે છે. એટલે એ ગ્રેવિટીના પુલથી એ ત્યાં પહોંચી જાય છે મૂનની સર્ક્યુલર ઓર્બિટમાં, અને પછી આપણે फ्यूअल એને कंट्रोल કરવામાં આવે છે. ओके, रितेश जी आपकी साथ है. रितेश जी, जैसे हम मूवीज में देखते हैं बहुत सारे हीरोज होते हैं, लेकिन वो तो है ही हीरोज, लेकिन असल हीरोज एक तो जवान है और एक आपकी जैसे साइंटिस्ट है. यहाँ पे जो जितने भी साइंटिस्ट हमारे साथ बैठे वो सब हीरोज ही है हमारे लिए. इसीलिए आपको भी सो मच थैंक यू सो मच. पर इसके साथ साथ अगर हम बात करें नासा की भी और रोस्कोसमोस की भी, तो सबकी नज़र इस मिशन पे है, इसरो की इस मिशन पे है. और जैसे हम थोड़े साल पहले जाए तो पहले इसरो सिवाय और कोई ऐसी कंपनीज नहीं थी जो स्पेस के अंदर इतना काम कर रही हो. लेकिन थोड़े सालों में ये कंपनियां पर बहुत बड़ी है और अभी जो भारत में काम होता है वो ना कि कॉपी करने का होता है, लेकिन कुछ ऐसा हटके बनाने का होता है कि जिसका फायदा न मात्र भारत को हो बल्कि पूरे विश्व के अलग अलग देशों को हो. ऐसा काम कर रहा है इसरो भी. हाँ, धन्यवाद मैडम आपके जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं उसके लिए, क्योंकि जितने लोग लगे हुए इस मिशन में वो दिन रात बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं किसी भी ये सफलता के लिए. और मिशन को करने के लिए बहुत सारे लोग का योगदान होता है. केवल लाइक आप कोई भी सिस्टम बनाते हो तो उसका परीक्षण बहुत जरूरी है. जैसे अभी बात हो रही थी ग्रेविटी की, तो लाइक ग्रेविटी अगर आप देखो तो अर्थ पे 6 गुना अधिक है चांद की सतह के मुकाबले. तो यहाँ पे आपको सिस्टम को टेस्ट भी करना है और ऐसा सिस्टम भेजना है जो अर्थ के से जा रहा है और मून के ग्रेविटी में सरवाइव करने वाला है, और उसको लैंड करना है सक्सेसफुल. और फिर जो भी हमारे पे डेटा है, जैसे आप मानिए आपको अपना लोकेशन पता करना है अर्थ पे, तो आपके पास जीपीएस है, लेकिन वहाँ पे लूनर सरफेस पे कुछ ऐसा हमारे पे रेफरेंस नहीं है. तो हम कैसे बता सकते हैं कि हम कहाँ पे स्थित हैं? उसके लिए जो भी हमारे क्रेटर वगैरह होते हैं वो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं और वो बहुत समय तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चांद की सतह पे कुछ भी वायुमंडल नहीं है. तो हमने उनको रेफरेंस माना अपने को पता करने के लिए कि हम कहाँ पे हैं और हमको कहाँ पे जाना है. तो ये सब चीज़ें जो हमने ले करके ऑन बोर्ड भी सिस्टम डाला, उनका हमने सघन परीक्षण किया. कभी हेलीकॉप्टर में किया, क्रेन में किया, अलग अलग माध्यम से उन्होंने उनका परीक्षण किया ताकि कोई भी इसमें त्रुटि ना रह जाए, सब कुछ एकदम सफलतापूर्वक हो जाए. इसके लिए बहुत ही रिगरस परिश्रम सबने किया है और पूरे इसरो टीम में इन्होंने जो भी परीक्षण करके जो भी हमारे आउटकम आए, तो हम ये मान सकते हैं कि इस बार ये मिशन रियली 100% सक्सेसफुल होगा. और इसके लिए जितने भी इसरो और देश के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 2019 के सेटबैक के बाद भी हम लोगों को लाइक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और हम लोग को इतना उनका मार्गदर्शन मिला और आगे हमें ये करने की प्रेरणा मिली. तो ये सब जितनी भी असफलता हुई, इससे हमने सीखा कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, और यही हमारा मोटिवेशन है इसरो का कि हमको सतत प्रयास करना है कि हमको सफल कैसे होना है. उसमें इसरो हमेशा अग्रणी है. जी, और साथ में रितेश जी, जैसे अगर हम थोड़े साल पहले की बात करें तो स्पेस सेक्टर में इतना बजट नहीं था भारत का जो पिछले कई सालों में बढ़ा है. तो उसकी वजह से भी इसरो जैसी कंपनियां हैं उसको काम करने में ज्यादा उम्मीदें भी लगी है. जैसे अभी आपने प्रधानमंत्री की भी बात की, तो उसका भी बहुत रहता है सपोर्ट, जिसकी वजह से हम ऐसे और इससे कई ज्यादा अच्छे वाले मिशन भी कंप्लीट कर सकेंगे. सही बोला मैडम आपने, क्योंकि उनका मार्गदर्शन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जितना भी इसरो का सब डिपार्टमेंट वगैरह है उन्हीं के पूरे कंट्रोल में रहता है. और ये जो भी मिशन है, जैसे आपको पता होगा मंगलयान के वक्त लोगों में धारणा थी कि भारत ऐसे मिशनों को अंजाम नहीं दे पाएगा, जैसे चंद्रयान 1 हुआ या मंगलयान हुआ, या जैसे हमने एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट बनाया था RISAT-1,
वो माइक्रोवेव में जा करके इमेजिंग करता है धरती का उस वक्त उस कंडीशन में, जैसे मानसून में पूरा क्लाउड कवर है तो भी आप धरती का मानचित्रण कर सकते हैं। उसके लिए दिन रात के लिए जैसे सन इल्यूमिनेशन चाहिए ऑप्टिकल सेंसर में, उसकी भी जरूरत नहीं है। इसमें खुद ओन सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, उससे आप अर्थ को इमेजिंग कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कहाँ पे क्या प्रलय आया है, या स्कैटरोमीटर हमने बनाया जिससे हम चक्रवात का पहले अनुमान करके बहुत लोगों को बचा सकते हैं। ये सब ग्लोबली जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनको ये इनपुट जाते हैं। उन्होंने देखा कि भारत इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और इसके अलावा एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, चंद्रयान 2 में एक हमने OHRC करके सेंसर डाला, ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा, तो वो अभी 30 सेंटीमीटर विभेदन का इमेज देता है लूनर सरफेस का, जो कि पूरी दुनिया में इतना बढ़िया उच्च रिजोल्यूशन का कोई इमेज अवेलेबल नहीं है। तो अदर कंट्रीज को भी आइडिया लगा कि हाँ इसरो इन सब चीज़ों में कितना कैपेबल है, और इसीलिए हमारे उनके साथ कई सारे जॉइंट मिशन होने लगे। जैसे नासा के साथ नासा इसरो सार NISAR, अभी उसकी तिथि घोषित हो रही है, अगले साल उसका भी लॉन्च है। तो ऐसे बहुत सारी एजेंसी आकर के हमारे साथ जुड़ रही है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बढ़ती जा रही है इसरो की, इसीलिए वो फंड की जो आपने बात की उसमें भी बढ़ना स्वाभाविक है। જી જયંતિભાઈ, જે રીતે આ પ્રકારના મિશન જ્યારે આગળ વધતા જાય અને જે રીતે આપણે બધા ખૂબ જાણીએ છીએ આજે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પણ ચંદ્રયાન 3ની ચર્ચા ચારેકોર છે, ખાસ કરીને બાળકો પર વધારે ઇમ્પેક્ટ આ મિશનની પડતી હોય છે અને કદાચ બની શકે કે આ પ્રકારના મિશનથી બાળકોમાં એ રસ જાગે અને સાયન્ટિસ્ટ બનવાનું સપનું જાગે અને આવા અનેક સાયન્ટિસ્ટ પણ આપણને આ ભવિષ્યમાં મળી શકે। હા, હમણાં રિસેન્ટલી અમારા એસ્ટ્રોનોમી ક્લબમાં ઘણા બધા પેરેન્ટ્સ એમના બાળકોને આ વિશે ઇન્ટરેસ્ટ જાગે છે અને એના માટે ઘણી બધી ઇન્ક્વાયરીઝ મોકલતા હોય છે કે એ લોકો એસ્ટ્રોનોમીમાં અને સ્પેસ એક્સપ્લોરેશનમાં આગળ શું કેરિયર માટે કરી શકે। તો એ બહુ ઇન્ટરેસ્ટ વધી રહ્યો છે બાળકોમાં, બિકોઝ બહુ બધી ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ છે અને એ ઇન્ફોર્મેશનના બેઝિસ ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ વધી રહ્યો છે, એટલે it is going to make a big change in the future generation। सर्वेश जी, जैसे मैंने अभी सर से बात करी कि अभी इसरो की बात हो या फिर भारत देश के अंदर जितनी भी अलग अलग कंपनियां हैं जो स्पेस सेक्टर में काम कर रही है, ऐसा आज नहीं है कि कुछ कॉपी कर रहे हैं भारत वाले लोग, ऐसा है कि आज हम कुछ ऐसा बना रहे हैं कि जो पूरी दुनिया को काम आएगा। और इंटरनेशनली हमारी जो चीज़ें हैं वो इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि जैसे आज हम रॉकेट की बात करें तो कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि जो अपने जो सैटेलाइट है वो हमारे पास देते हैं लॉन्च करने के लिए। तो ये अभी आज का भारत है, नया भारत है। देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना, जैसे कि अब चंद्रयान 2 मिशन था, चंद्रयान 2 मिशन की जो पूरी लागत थी, अगर आप बजट देखो तो वो 850 करोड़ के आसपास था। और हैरानगी की ये बात है कि हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है वो 600-650 करोड़ के आसपास पे हम लॉन्च कर रहे हैं। ये एक चीज है जो मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहता था। और रही बात आप जैसे बोल रहे हो कि ग्लोबली, हाँ बिल्कुल, इंडिया की इमेज इस समय स्पेस एक्सप्लोरेशन में अगर मैं कहना चाहूँ तो शायद नासा या तो ESA को छोड़ो तो हम शायद तीसरे नंबर पे है ही हैं जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं। बस हम सिर्फ चंद्रयान 3 अगर हमने सक्सेसफुली कर दिया, जो हम करने ही वाले हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि नासा के बाद अगर कोई दुनिया में स्पेस एजेंसी है तो वो भारत है। चाइना ठीक है, चाइना भी है आप कह सकते हो, लेकिन भारत आप टॉप 3 में एटलीस्ट हमारा इसरो पहुंच ही जाएगा। और दुनिया मानती भी है, क्योंकि आज भी आप देखो तो दुनिया के कई देश है जो भारत से ही अपने सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च कराते हैं। हाँ। तो ये भारत के लिए भी इंटरनेशनली और ग्लोबली भी बहुत बड़ी बात होगी। रितेश जी, जैसे अभी कोई भी अगर ये देखता है कि चंद्रयान 3 के जो विजुअल्स होते हैं उसमें सारे ऑर्बिट की अगर बात कर ले या तो फिर रोवर की बात कर ले, तो वो ये गोल्ड पेपर जो दिखता है, सबके मन में ये उत्सुकता होती है कि ये कलर क्यों ऐसा है, मतलब गोल्ड कलर या तो गोल्ड का पेपर ही क्यों लगाया जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण होता है और ये कैसे हेल्पफुल रहता है इस मिशन को पार करने में? जैसे आपको पता है कि जब भी स्पेस एनवायरनमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे रेडिएशन के इफेक्ट बहुत होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी एटमॉस्फेयर नहीं है। हमें तो धरती कैसे रेडिएशन के इफेक्ट से बचाती है, क्योंकि हमारे चारों ओर पूरे एक वायुमंडल का कवर है। वैसे ही अगर हमको पूरे सिस्टम को भेजना है तो उसको एक पूरा हमको आइसोलेट करके भेजना पड़ता है। तो वो सिस्टम जो आपको गोल्ड वाला दिखता है वो बेसिकली एक तरह का कवर होता है, ये पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। जी, हमें थर्मल सर, करना है। सर मैं आती हूँ आपके पास। अभी
અને ચંદ્રયાન 3 મિશનને લઈને જ વાત કરી આપણે रितेश शर्मा સાથે વાત કરી રહ્યા હતા। रितेश जी, आप जो भी बोल रहे थे आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। हाँ दिव्या जी, तो जो ये मटेरियल होता है इसको मल्टी लेयर इंसुलेशन बोलते हैं। तो जैसे हमारा अर्थ का एनवायरनमेंट के चारों एक वायुमंडल है जो हमें बाहर के हाई टेम्परेचर से हमको बचाता है। तो आप जो बोले गोल्ड वाला क्या है, तो वो मल्टी लेयर इंसुलेटर मटेरियल आता है, बहुत ही एक्सट्रीमली लाइट होता है लेकिन बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये हमें थर्मल कंट्रोल और उससे प्रोटेक्शन के लिए जो भी हमारे ऑनबोर्ड सिस्टम होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो उनको थर्मल प्रोटेक्शन देने के लिए ये कवर हम उसको चढ़ाते हैं। दिव्या जी। जी सर। सर्वेश जी, जैसे चंद्रयान मिशन को बस अब मिनट ही बाकी रह गई है, अब शायद सेकंड्स भी गिनी जा सकती है, इतना ही समय रह गया। इस सिचुएशन पे सभी जितने भी साइंटिस्ट है, वो मात्र इसरो के ही नहीं, सारे भारत के जितने भी साइंटिस्ट है, उसकी स्थिति क्या होगी? क्योंकि कोई छोटा मिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक साइंटिस्ट के लिए और एक देश के लिए भी। देखिए, ये तो भारत देश में रहने वाले जितने भी, सिर्फ साइंटिस्ट नहीं कर रहे, हाँ, जितने सारे भी लोग, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, सबके लिए बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट है। क्योंकि 2019 के बाद आज वो दिन आया। 4 साल से सबको इंतजार था कि कब चंद्रयान 3 जाएगा, कब लॉन्च होगा, कब हम चांद की सतह पे उतरेंगे। तो ये पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। इसमें हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स की आप जितनी भी आप तारीफ करें कम है, क्योंकि उनके मेहनत के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है ये चीज करना। क्योंकि जो चीज का हम अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने, अमेरिका जिसे हम कहते हैं, जिन्होंने शायद 20-25 शायद अपने लैंडर और रोवर को चांद पे उतारा, लेकिन कभी उन्होंने भी ये ट्राई नहीं किया कि हम लूनर साउथ पोल रीजन पे जाके अपने लैंडर या रोवर को उतारेंगे। जो सिर्फ पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो एक कदम बढ़ा रहा है और जिससे वो पूरा ही करने वाला है। तो इसलिए बहुत ही गर्व की बात है हमारी। हाँ, और रितेश जी, बहुत खुश लग रहे हैं आप। इसरो में क्या स्थिति है अभी? जैसे बहुत कम समय बच चुका है, वहां पे क्या लोगों में उत्साह है, वहां के साइंटिस्ट में कैसा माहौल है? हाँ, एक्चुअली दिव्या जी, मैं तो श्रीहरिकोटा में नहीं हूँ, मैं अभी अच्छा। साइंस सिटी में हूँ अहमदाबाद के, लेकिन ओके। वहाँ पे जो तैयारियां हुई हैं बहुत अच्छे से है सब कुछ, और सब लोग अभी लॉन्च के लिए अब सब वेट कर रहे हैं, सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। જી જયંતિભાઈ, આપનું શું કહેવું છે? બસ હવે ખૂબ ઓછો સમય બચી ગયો છે, આ મિશન આપણે પૂરેપૂરો એટલો વિશ્વાસ રાખીએ છીએ કે આ મિશન આ વખતે સક્સેસફુલ જશે, અને જે રીતે આપણે પહેલા વાત કરી કે ભારતનો સક્સેસ રેટ પણ બીજા બધા જ દેશ કરતા સૌથી વધારે હશે। બિલકુલ, પ્રોબેબિલિટી બહુ જ સારી છે સક્સેસ મિશન માટે। અમારા એસ્ટ્રોનોમી ક્લબના મેમ્બર્સ પણ ત્યાં શ્રીહરિકોટામાં ગયા છે, ત્યાં લોન્ચ જે જગ્યા છે ત્યાંથી એ ઓબ્ઝર્વ કરવા માટે ત્યાં ગયા છે, અને બહુ એક્સાઇટમેન્ટ છે हमारा मेंबर्स में पण। ओके, जयंती सर्वेश जी, अभी जैसे साइंस सिटी है, वहां पे भी बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो चुके हैं, वो चंद्रयान 3 के मिशन के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी लॉन्चिंग को देखना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल बजा देता है इस पूरे मिशन में, क्योंकि भारत का हर एक छोटे से छोटा बच्चा भी इस मिशन का भागीदार बनने जा रहा है आज। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मैक्स साइज करके, अभी हमने कैसे इस चीज को सेलिब्रेट किया इसरो के। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 3-4 साल 5 साल के बच्चों को हम चंद्रयान 3 की वैल्यू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या कि ये आपके दर्शक के बच्चे भी जाके ट्राई कर सकते हैं घर पे। हमने एक एग लिया, एक अंडा लिया, और एक अंडे को एक रोवर हमने बताया कि आपका एग है, अंडा एक रोवर है। जैसे चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, एक ही प्रॉब्लम हुई थी, हमने सब कुछ अचीव किया था, सिर्फ हमारा लैंडर रोवर अर्थ मून की सतह पे उतर नहीं पाया। तो हमने अपने बच्चों को ये टास्क दिया कि दूसरा मंजिले, तीसरी मंजिले से आपको अंडे को गिराना है, मेक श्योर करना है कि अंडा आपका बिना टूटे लैंड करना चाहिए। सो आप उसमें आपका दिमाग लगाए, आप उसको प्लास्टिक रैप से रैप करिए, या तो प्लास्टिक का पैराशूट बनाइए, पैराशूट से उस अंडे को लैंड कराइए। तो ये सब तरीके जिससे हम अपने बच्चे और जो यंग माइंड्स है उनके अंदर इस चीज के लिए इंस्पिरेशन डाल सकते हैं। क्योंकि हर कोई श्रीहरिकोटा नहीं पहुंच सकता, लेकिन हम यहाँ पे रह के कैसे उन्हें इस चीज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं या तो पार्टिसिपेट करा सकते हैं। तो हमने इस तरीके से अपने बच्चों को कराया।
હા, એટલે બધા જ શ્રી હરિકોટા નથી પહોંચી શકતા, બધા સાયન્સ સિટી પણ નથી પહોંચી શક્યા, અને કોઈ તમામ લોકો જે અત્યારે ગુજરાત ફર્સ્ટ જોઈ રહ્યા છે પડે પડની અપડેટ ચંદ્રયાન 3ના મિશનને લઈને, તેના લોન્ચિંગને લઈને, તેનું જે લોન્ચિંગ પણ થશે એ પણ પડે પડ અપડેટ અમે આપના સુધી પહોંચાડતા રહીશું. ચર્ચા પણ યથાવત રાખીશું, સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું આ મિશનને પણ. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.